a website work or what happens whenever we try to access a particular website, right? So let's come ahead of that. So this was the graph which we understood in the last lecture, right? And I think most of you have understood what I, tried to deliver. अगर इसके अंदर कोई डाउट है, if anyone has any kind of doubt, तो वो मुझसे अभी बोल सकता है कि सर मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया. मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके रिकॉल के लिए. So this is a process which happens at the back end whenever we try to access a Hello, sir. particular website or web page, right? So who is this? Okay. Sir. Okay, so guys, those who are joining late, just be with me. Yes. सर एक बार शॉर्ट रिमाइंड करा दो सर वापस से एक बार आप. Yes, yes, मैं वही कर रहा हूँ. Yes, thank you sir. I'm doing that. So just be with me. So let's see how web works. एक quick overview कर लेते हैं, quick go through कर लेते हैं. So for obviously our objective is to access a website, and what we need to understand that what happens behind the scenes, what happens behind the interface which we see. So obviously there is a user like you, like me. In order to access a particular website, we need a browser, Google Chrome, Firefox, Safari, Edge, UC browser, etc. And once we open the browser, we need to enter the URL. URL means uniform resource locator, right? For instance, we are taking the example of technovation.in. So you need to know the URL. We have already discussed that you don't need to remember HTTP or www. Browsers automatically add this. You just need to remember whether it is technovation.in or whether it is technovation.com. So once you enter the URL and hit the enter button, you are expecting to see a website, and that's how it works, that a user come to the browser, enters a URL, hit the enter button, and he can see the website. So this is the process which a user can see or a user performs. But what happens at the back end, when you enter a URL and press enter, a request is sent to the DNS server. What is DNS server? DNS server is nothing but the directory in which every domain name has its own unique IP address. Every domain name is mapped with the IP address, because internet does not understand technovation.in. They work on IP address basis. They they allocate each and everything on a specific IP address basis. Like your laptop has a unique IP address, my mobile phone has a unique IP address. So all over the internet, everything works on the basis of IP address. Similarly, like our home address, office address. So what DNS server does, DNS converts that particular domain name into the IP address, right? A request is sent to DNS, and after that, this request is carry forwarded to server. The server is nothing but a computer or a software where your actual data is stored of website. The website is not stored on your computer, not your friend's computer. It is stored is somewhere at remote location on the internet, and the server is that place, or server is that computer where your website content is stored: images, videos, text, graphics, each and everything, right? So this is that rented space, or in the easier term, you can call it hosting, web hosting. This is the server, and when the request goes to server decodes that, okay, what is the content we need to retrieve, what is the IP address, or each and everything. Once that processing is done, server sends back a response in the form of data to your browser, and because of that, you are able to see your website, right? Once server receives the request, it decodes that, it has a process to identify which kind of content you are looking for, what kind of website you want to access, and once it is done, it sends a response to your browser, and with your content. Let's suppose you want to see images, you want to see PDF file, you want to see text images, text content. So all these things are sent back by server to your browser, and once browser receives that, it converts into the human readable format, right? So this is the overall process which happens whenever you try to access a website. Guys, this is very important diagram in order to understand whenever you are accessing any kind of website.
maybe in terms of from your mobile phone, from your tablet, from your computer. Each and every time this process will happen, no website can run without completing this process, right? So this is to be very clear. That's why this was very important, and I have my level best to make it as simple as so that you can understand without any problem. And I don't think so that there are much complicated terms used in it. They are very basic terms, and there are very basic components used in this flowchart. Are you guys on with me? Can we move ahead? यस सर। Just सर say मेरे yes को or एक no. चीज पूछनी Yes, थी sir. Yes, sir. हाँ, yes. कि कल अपन ने ऐसे पढ़ा था कि शेयर्ड और डायरेक्टेड वो होते हैं Dedicated. प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस। हम्म. तो डीएनएस सर्वर भी आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है, और अपन ने कल आईपी एड्रेस निकाली थी वेबसाइट्स के, तो डीएनएस सर्वर कैसे डिफरेंशिएट करता है कि शेयर्ड में से उसने निकाला फिर वो उसी वेबसाइट पे पहुंचा देता है हमको? देखो उसके अंदर क्या होता है कि जब मैंने लास्ट टाइम जो तुम्हें बोला था कि अगर शेयर्ड सर्वर पर है, यानी देयर आर मल्टीपल वेबसाइट ऑन द सेम आईपी एड्रेस, तो वहां पर फिर दो चीजें काम में आती हैं। ये एडवांस पार्ट है, आगे पढ़ोगे। दैट इज वन इज कॉल्ड पोर्ट नंबर एंड सेकंड वन इज नेम सर्वर। पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर उस पर्टिकुलर गेटवे का एक नंबर होता है। लेट्स सपोज कि आपका आईपी एड्रेस है कि 192.168.122.23, ये आपका एक आईपी एड्रेस है। अब इस आईपी एड्रेस पे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, लेट्स सपोज 5 वेबसाइट्स हैं। उन पांचों की पांचों वेबसाइट्स का एक इंडिविजुअल पोर्ट एड्रेस होगा। किसी का 80 होगा, किसी का 5522 होगा, किसी का 2255 होगा, प्लस उन सब वेबसाइट्स का एक डीएनएस नेम सर्वर भी होता है, जो हमने कल देखा भी था कि एक नेम सर्वर आता है आईपी के बगल में। तो वो जब उसके साथ हम मैप कर देते हैं, तब वी कैन एक्चुअली एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेबसाइट ऑन अ शेयर्ड सर्वर एज वेल। मैंने आपको कल ये बोला था कि मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इंटरनेट के वर्ल्ड में। तो कल अपन जो कोशिश कर रहे थे दैट इज अ लेमैन, कि भाई हमने डायरेक्ट आईपी डाला तो क्या होता है क्या, लेकिन उसमें हमने क्या देखा कि शेयर्ड पे नहीं होगा डायरेक्टली, डेडिकेटेड पे हो जाएगा। तो शेयर्ड पे करने के लिए क्या होता है कि शेयर्ड के लिए आपको पोर्ट नंबर चाहिए होता है और उसका नेम सर्वर चाहिए होता है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं, तो यू कैन एक्सेस दैट वेबसाइट ऑन द शेयर्ड सर्वर एज वेल। वो मैं बताऊंगा, इसको एक बार नोट करके रख लो, यश, राइट डाउन करके रख ओके लो। सर। अपन लेक्चर के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपन क्या है, अभी थोड़ा सा टाइम में रनिंग लेट चल रहा है। एक बार लेक्चर खत्म कर लें, ओके फिर अपन इस पर डिटेल में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो एवरीवन हैज ऑन द सेम पेज। सबको ये रिवाइव हो गया, सबको रिकॉल हो गया कि भाई हाँ सर, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जस्ट से यस और नो क्विकली इन द चैट बॉक्स। Yes, sir. ओके, ग्रेट। सो नाउ अब थोड़ा सा जो पार्ट है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज विद एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है? सो नाउ हाउ वेबसाइट वर्क्स, फॉर श्योर जो मैंने अभी तक बोला उसी को ये लिखा हुआ है वर्ड्स में, ठीक है ना? तो यू कैन यूज इट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट ऑब्वियस वे ऑफ इंटरनेट, कि टेक्नोवेशन की वेबसाइट हमें एक्सेस करनी है, ठीक है? तो क्या करोगे? द मोमेंट यू एंटर दिस एड्रेस इन योर ब्राउजर एंड हिट द एंटर, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस। क्या क्या होता है? यूआरएल रिजॉल्व होता है। यूआरएल रिजॉल्व का मतलब क्या है कि आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है। दैट यूआरएल इज कन्वर्टेड इनटू द आईपी एड्रेस बाय द डीएनएस। सेकंड इज द रिक्वेस्ट इज सेंड टू द सर्वर, जहां पर वेबसाइट का आपका डेटा स्टोर है। थर्ड थिंग, द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्वर इज पास्ड। इट मींस कि जो भी सर्वर है वो आइडेंटिफाई करता है विच काइंड ऑफ वेबसाइट यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू वांट टू एक्सेस, एंड वंस दैट इज डन, द सर्वर सेंड्स बैक अ रिक्वेस्ट टू द ब्राउजर, कि भाई रिस्पॉन्स को एक बार भेजता है, एंड द पेज इज रेंडर्ड एंड डिस्प्ले। तो एंड ब्राउजर, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अ ब्राउजर इज अ पीस ऑफ कोड दैट अलाउज अस to to sorry to read, to display the content in the human readable format, whether it is text, whether it is content, whether it is images, anything. So once that is rendered by the browser, we can see the website. So these are the four steps which we need to complete, or which a browser or which a web need to complete in order to show a website. So अब ये जो 4 स्टेप्स हैं, इनको अलग अलग में हम डिवाइड कर सकते हैं, और हर स्टेप को हम अब डिटेल में समझेंगे। अभी तक व्हाट वी अंडरस्टूड इज, वी अंडरस्टूड द ओवरव्यू, कि अच्छा यहाँ से यूजर आया, उसने ब्राउजर में गया, एक यूआरएल डाला, यूआरएल में डीएनएस में गया, कन्वर्ट हुआ आईपी एड्रेस में, एंड देन वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई, सर्वर ने देखा कौन सा डेटा है, सर्वर ने डेटा भेजा ब्राउजर के पास, एंड ब्राउजर ने उसको कन्वर्ट किया ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। तो ये तो था एक ओवरव्यू। अब थोड़ा सा डीपली बात करते हैं। लेट्स
jump into the little bit of depth of this process कि each and every step पे क्या हो रहा है actually में वो कैसे काम कर रहा है. ठीक है? So the first thing is very obvious. What is that? The website code is obviously not stored on a computer, hence needs to fetch from another computer where it is stored. ये समझ में आ रहा है कि भाई कोई भी वेबसाइट आपके खुद के कंप्यूटर पे या खुद के मशीन पे, खुद के मोबाइल पे स्टोर नहीं होती है. इट इज स्टोर समवेयर एल्स. दैट इज कॉल्ड सर्वर. That's why all the content needs to be fetched, right? And for that, the other computer is called as server because it serves some purpose. In our case, it serves a website. क्यों इसको सर्वर बोलते हैं? Because it serves a request. जो टर्म इंट्रोड्यूस हुई है सर्वर, दैट इज बिकॉज कि इट सर्व्स अ रिक्वेस्ट, इट सर्व्स अ पर्पस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सर्वर. क्लियर है यहां तक? नो बिग टर्म, बहुत इजी चल रहे हैं अपन. नाउ you entered technovation.in. Now I said that okay, go and access Technovation website. So what you will do, you will enter technovation.in at least. You will not enter www or http. You will just need to enter technovation.in. And what is that? That particular domain name is converted into IP address. Just read out that line. You enter technovation.in, that is called a domain for sure. But actually, the server which hosts the source code of a website is identified via IP address. That is called Internet Protocol address. The same thing which I told you, that server does not understand technovation.in. Server understands the language of IP address. The browser sends a request to the server with the IP address you entered, or maybe indirectly technovation.in. If you enter technovation.in, then DNS domain name system will convert into the IP address. And if you enter directly IP address, then it will go to the server. तो अगर मान लो आपने डायरेक्ट IP एड्रेस ही डाल दिया तो DNS को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन मोस्ट ऑफ दी टाइम क्या होता है भाई, सेम एग्जांपल, हम मोबाइल फोन में राहुल सर्च करते हैं या फिर राहुल को बोलते हैं कि सिरी कॉल राहुल, राइट? एंड दैट कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल मोबाइल नंबर ऑफ राहुल, कि राहुल का मोबाइल नंबर क्या है उसमें कन्वर्ट करो. अगर आप डायरेक्टली मोबाइल नंबर डाल दोगे तो क्या आपको राहुल टाइप करने की जरूरत पड़ेगी? सही है सर? नो? यस सर. जाते हो क्या तुम सारे? ओके ग्रेट. तो राहुल को एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू एंटर डायरेक्टली मोबाइल नंबर. नाउ व्हाट इज आईपी एड्रेस? हमने कल बात की थी, कल निकाल के भी देखा था. तो आईपी एड्रेस टिपिकली कैसा दिखता है? लाइक इस तरह से कुछ दिखता है. 172 डॉट, रिमेंबर डॉट, 56.180.5, ये कुछ इस तरह से दिखता है. ठीक है? इसका एक एडवांस वर्जन भी है IPv6, बट उसमें अभी हम नहीं जाएंगे. हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ही समझना काफी है दैट व्हाट इज आईपी एड्रेस. So this is the exact address of a particular server, of a particular website, of a particular space on internet. कि अगर आपको ये पता है ना, मतलब ये इसको उसी तरह समझो कि let's suppose if you want to find Rahul in Jaipur, so you need to know his house number, flat number, maybe building number, colony name, street address, then locality, then nearby landmark, then what you can say pin code. So these are the things which you need to know in order to access a physical physical address. Same as if you need to access an online address, you need all these kind of digits. So each and every digit has its own meaning, but we will not go into deep into that because that is a very big field, that is a very vast field कि IP एड्रेस में क्या कौन सी डिजिट होती है क्या. अच्छा, तुमने देखा है वो टाइगर जिंदा है वाली मूवी देखी है किसी ने? टाइगर जिंदा है वाली मूवी यस सर, देखिए किसी ने? देखिए उसमें क्या होता है, टाइगर जब बिल्कुल एक पहाड़ी इलाके में जाके रहने लग जाता है अपने फैमिली के साथ, और वो रॉ के एजेंट्स उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, आते हैं उसके बाद ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं उसको आईपी एड्रेस से. और जब वो डिनर कर रहे होते हैं तब वो बोलता है कि भाई हमने आपको ढूंढ लिया. और फिर सलमान खान बोलता है कि नहीं, तुमने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने हर बार तुम्हें हिंट दिया कि मैं कहां हूं. क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस में हर डिजिट का एक मतलब होता है. हर डिजिट एक चीज डिनोट करती है कि यार दिस इज द एरिया कोड, दिस कैन बी द एरिया, दिस इज द लोकेलिटी, दिस इज दिस. तो सेम एज आईपी एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हैकर जो होते हैं, क्यों आप सारी मूवीज में देखते हो कि यार उसका आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा? तो आईपी एड्रेस मींस द एग्जैक्ट लोकेशन की वो कहां पर है.
राइट? सो इतना आप समझ लो कि आईपी एड्रेस काम करता है. आईपी एड्रेस के बिना हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, बट हमें वो करने की जरूरत नहीं होती. डीएनएस अपना काम करता है और अपने जो हमने डोमेन एंटर किया है उसको ऑटोमेटिकली आईपी में कन्वर्ट कर देता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब यहां पर देखो यह चीज हम पढ़ चुके हैं. ओके, if you can see my screen, any one of you unmute yourself and explain it to me and to others as well. We have already discussed that. Now I want you to again explain it to me. Anyone, or maybe should I call someone? बताओ कौन करेगा? Who can explain this? ये पढ़ा हुआ है, मैं अभी उसमें ग्राफ में देखा था, सेम चीज है. चलो मैं ही बोल देता हूँ फिर. Let's pick someone. Okay, so I'll pick. Do we have Riddhi with us? Sorry, Riddhi or maybe Nidhi. Nidhi, please unmute yourself. Good evening. Good morning, sir. Good मुझे morning. पता चल रहा है कि तुम कहाँ थी अभी तक. नहीं मैं यहीं चलो, थी. अब इसको एक्सप्लेन करो मुझे. As ठीक है. एक्सप्लेन करो इस स्लाइड. Okay. So first when we go to the browser, जब हम browser पे जाते हैं तो we put some sort of site जो भी like we can take an example of Technovation. So what Technovation does is कि it sends requests to DNS server. DNS server translates और जो domain होता है उसका domain name को IP address में transfer करता है, and then वही चीज then DNS server what does is कि बोलो सही बोलो. wait. You can read it out the text. The job of these DNS servers is to translate domains to IP addresses. You can imagine those servers as huge dictionaries that store translation tables. Domain translates IP address. When you enter technovation.in, the browser therefore first fetches the IP address from such a DNS server. So whenever we put a domain name, the DNS server translates that domain name into IP address, and that IP address is like that. It's sent to the server. Yeah, it's sent to the server, and then from like yesterday जैसे हम लोगों ने किया था कि we were trying to find out कि उस सर्वर से हमको पता चल जाए कि वो डोमेन नेम या फिर हमको वो वेबसाइट मिल जाए. बट उसमें भी मतलब there are two types of servers, shared servers and dedicated servers. Shared servers are those they share their IP addresses, and dedicated servers are those they don't share their IP addresses. So shared services are the pocket friendly ones, and the dedicated servers are the ones जो बहुत ज़्यादा safe होते हैं other than shared servers. Great. I am happy that इतना सब कुछ याद रखा आप लोगों ने. Great. Now who will explain the second step? मैं ऐसे ही करता हूँ यार, मेरे को लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हारे साथ. ये अब चलो. ओके, ग्रेट. सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम. निधि, great work. Now the second thing, now who will explain? Let's call someone else. Siddhi. Where is Siddhi? आज गर्ल पावर चलेगी सारी. Siddhi is sleeping, I guess. Siddhi, can you hear us? इससे पता चलता है कि कौन अपना मोबाइल ऐसे छोड़ के चला गया, लैपटॉप छोड़ के चला गया. सेकंड स्टेप कौन सा बताना है? डीएस कौन सा सेकंड स्टेप बताना है? ये समझा नहीं. ये वाला सेकंड स्टेप जहां पर आईपी एड्रेस मिल गया. अब आईपी एड्रेस से आगे चलना है. तो उसके बाद सर आईपी एड्रेस डीएनएस सर्वर रिक्वेस्ट करता है. सर्वर के बाद तो सर्वर से अपन को रिक्वेस्ट करके रिस्पांस करके अपनी वेबसाइट ओपन अप कर देता है. तो डीएनएस सर्वर कन्वर्ट द आईपी. तो कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू सी? क्या सर? हां,
can you see anything new in this slide? Can you see my screen? There is a Yes, sir. step 2 called request is sent. हाँ, तो इसके अंदर कुछ ऐसा नया दिख रहा है जो अभी तक अपन ने कवर नहीं किया है या अपन ने नहीं बोला या कुछ नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, इसमें से कुछ दिख रहा है? HTTP आया है सर। एक बार पढ़ के देखो ऊपर से जो फर्स्ट लाइन HTTP आया, करेक्ट. सो गाइस व्हाट हियर कि जब IP एड्रेस रिजॉल्व हो गया मींस वी गॉट द IP एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन, राइट? So the now the that particular request is carry forwarded to the actual server. Now I have already told you that इंटरनेट पर सारी चीजें करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, राइट? एंड इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वेबसाइट वी नीड अ प्रोटोकॉल कॉल्ड HTTP, Hypertext Transfer Protocol. It means the name signifies that it is used to transfer all the data. It used to display all the data from the browser from the server to your browser. Because without HTTP you cannot access a particular website, because HTTP is a set of protocol or rules defined by the internet that whenever you want to access a website you need to know or you need to write HTTP, right? We know that modern day browser automatically adds that, so we don't need to write it. So this is the only thing in this slide which has come new. Apart from that everything is similar. We have already discussed that. I don't think so any problem in that, because see, whatever we have discussed, this is the subjective or this is the descriptive version of that. So if you understand, okay sir, we need to we need to study something, we need to read something, so this is for your reference, not कि भाई हमें इसको बिल्कुल याद ही कर लेना है अपने दिमाग में as it is line by line and we need to write it into the exam. No, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, करेक्ट? चलो स्टेप 3 पे चलते हैं. स्टेप 3 is response by server. So do we have Siddhi back? No, Siddhi will be marked as absent. Vinay, can you explain the slide? Vinay? Vinay is not there. So please give me next. Okay, so Vinay is not comfortable with this. Who can explain that? Okay, by your choice. कौन करना चाहेगा? सर एक बार मुझे अगर आप वो स्लाइड दिखा दो तो आई थिंक आई कैन. ओके, तो ये आपकी स्लाइड है. जस्ट मिनट. हाँ. और हाँ गाइस, कोई एक समझा रहा है इसका मतलब ये नहीं बाकी रिलैक्स होके बैठ जाओ. स्क्रीन शेयरिंग इसीलिए कर रहा हूँ सो दैट यू कैन आल्सो रीड इट आउट एंड अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है. ये सेम चीज है, इसमें कोई भी नया कुछ भी नहीं है. द सेम थिंग, उसको बहुत एक डिस्क्रिप्टिव वर्जन में लिखा है. Stuff like that, right? यस. सर इसमें क्या होता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे जाती है. सर्वर पे हमारा सारा डेटा, फाइल्स, ग्राफिक्स जो भी होते हैं वो सब इस पे स्टोर होते हैं. किस तरह से पेज डिस्प्ले होना है ब्राउजर पे, वो सारी डिटेल सर्वर पे डिटेल होती है. अब इसमें हमारी दो चीजें होती हैं. एक होता है डायनामिक वेबसाइट होती है हमारी, और एक होती है स्टैटिक. जिसमें क्या होता है, एक जिसमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड होती है. जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है ना, वो अलग तरह से दिखाते हैं. और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम अपना डेटा फिल कर सकते हैं. जैसे कि कोई हमने जो वेबसाइट यूज की थी आईपी एड्रेस को निकालने के लिए, वो एक डायनेमिक सर्वर था जिसमें हमने एक रिक्वेस्ट डाली और उसने हमको आउटपुट दिया. इस तरीके का आउटपुट दिया कि हमने उसको अपना ईमेल वो डाला वेबसाइट का technovation.in और उसने हमको आईपी एड्रेस निकाल के दिया. तो वो ऐसा होता है. ये लास्ट वाला लाइन है. Okay. Great effort. Anyone else want to add something? Sir, I am a bit doubtful about the third alternative you have mentioned there. Is it talking about the one we discussed yesterday कि मतलब अपन ने कोई और IP एड्रेस डाला था किसी और चीज का एंड कुछ और खुल गया था? You remember? नहीं, it is not like that. Okay,
let me explain this step to you. देखो, response by the server होता क्या है? मैं एक बार आपको ब्राउजर पे ले चलता हूँ अपने, ठीक है? Let's suppose I am on Google, ठीक है? मैं गूगल पे गया और गूगल पे सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको एक स्क्रीन फैमिलियर दिखे. नाउ प्लीज पे अटेंशन कि मैं क्या करने वाला हूँ और मैं क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है? For example, for instance, again I am taking the same example, that is technovation.in. So what I'll do, I'll enter technovation.in and hit enter. So it will take time, 1 or 2 or 3 seconds. It will show me the Technovation website. Yes, I am able to see Technovation website with all the content. Now, what are the content? What is the content on my website? There is some text. There is some text. You can see there is some text. There is some background images. There is some button. Again, there is some images, text, images, text, images, text. So most of the content is in the form of images and text, or maybe the graphic or in the text. So now what happens is that when the request is sent to the server and server decodes that request and sent all the content to your browser and browser displays that, so browser uses some programming languages in order to display that. What are those languages? I have opened my notepad to just remember that any website in the world cannot be what do you say, cannot have an proper existence or a beautiful presence without these technologies, without these three technologies. The first one is HTML, that is called hypertext markup language. Hypertext markup language. CSS is cascading style sheet. I'll discuss each and everything in detail. And JS is JavaScript. So these are the three languages in which every website is made of, right? Let's suppose this is the Technovation website. Now if I want to see the actual source code, now you can see the code. This website is not made in WordPress. This is a custom made website which is made in HTML, CSS, JavaScript and other languages. You can see this some piece of code here, some lines of code here. So this is the HTML language. This is the HTML language. Without HTML, you can understand like this. You can understand like this. We are a human body. Okay? Just say yes or no. If you understand, just say yes or no. Just Yes, look sir. at me. You can see me, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay, so just understand a website as a human body. So I am a human body, right? What I have a head, I have two eyes, I have two hands, I have my body, right? So this body is called as HTML. This structure is HTML. Because without HTML, no website can have its structure. So in order to make a website structure, you need HTML. First thing, just lock it कि कोई भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर विदाउट HTML नहीं बन सकता. इट इज इम्पॉसिबल. HTML is the only language जो कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के काम आती है. तो फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज CSS. CSS मीन्स स्टाइलिंग. अब यार एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, आई एम टेकिंग टू यू द नेक्स्ट स्टेप. अब हम बात कर रहे हैं वेबसाइट की. ठीक है, सर्वर पर जो भी होना था हो गया. ठीक है, हमने सब कर लिया. हम बात करें डेटा. देखो अब आते हैं पेज इज डिस्प्लेड. HTML कोड जैसे मैंने बताया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, ये आता है. अभी देखें, देयर आर टू स्क्रीनशॉट्स. सेम वेबसाइट है. अगर मैं बात करूं लेफ्ट वाले की, तो लेफ्ट वाले बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है. डू यू गाइस एग्री विद मी कि हाँ सर, लेफ्ट वाला जो है वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है. करेक्ट है? यस और नो? यस सर. Yes, sir. अब इसी का दूसरा वर्जन है राइट वाला. अब आप ये सोचोगे कि सर ये क्या हो गया, मतलब लेफ्ट साइड वाला इतना अच्छा दिख रहा है, राइट साइड वाला इतना बुरा क्यों दिख रहा है? क्योंकि राइट साइड वाला सिर्फ HTML कोडेड है, उसमें CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं किया हुआ. सर इससे फर्क क्या पड़ता है? गाइस ये आपके लिए रेफरेंस है. कैन यू अंडरस्टैंड द CSS नाउ? लड़कों को समझ में आ गया होगा. कुछ समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं CSS के बारे में? हाँ सर, समझ रहा हूँ. क्या समझ में आया? मतलब इट ब्यूटीफाई द वेब पेज.
यस Yes, करेक्ट भाई। एक और कोई इसका स्क्रीनशॉट लेके ये मत बोल देना परेश सर को, देखो सर राहुल सर क्या दिखाते हैं क्लास में। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि HTML आपका स्ट्रक्चर बनाता है वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू टेक्नोवेशन वेबसाइट, अगर आपको टेक्नोवेशन वेबसाइट इतनी ब्यूटीफुल दिख रही है, इसके देखो ये बटन्स दिख रहे हैं, कलर्स दिख रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ CSS। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ CSS। अगर इसके अंदर CSS का यूज नहीं होता देन इट वुड बिकम अ वेरी मोनोटोनस वेबसाइट विदाउट एनी कलर्स, विदाउट एनी इमेजेस, विदाउट एनी स्टाइलिंग। तो क्या होता, जैसे हम क्या करते हैं भाई, हमारी ये बॉडी है, हम उसके ऊपर ये कपड़े क्यों पहनते हैं? अच्छा दिखने के लिए। बालों में जेल लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, गॉगल्स लगाते हैं, घड़ी पहनते हैं, क्यों? जस्ट टू ब्यूटीफाई आवरसेल्फ। क्योंकि बॉडी तो हमारी वही रहने वाली है ना, अगर हम सब कुछ निकाल दें तो बॉडी तो हमारी वही रहने वाली है। बट वी कैन नॉट गो लाइक दिस। हम मार्केट में बिना कपड़ों के या बिना कुछ पहने तो नहीं जा सकते ना। तो वी नीड टू wear some clothes, we need to comb our hairs, we need to do some makeup kind of thing, touch up kind of thing, just to beautify ourselves. So this is the role of CSS. So what you can do, HTML means to make the structure of the website. What is the use of HTML? To make the structure of the website. What is the use of CSS? To what you say, beautify the web page, including color, style, a button, each and everything. So you need, if you want to give a color, like let's suppose this is a color, this is a background color, so you need to use the CSS. Now let's come to JavaScript. अब JavaScript क्या होती है? For example, अगर मैं बात करूं, एक नया इसमें एक और कुछ खोलते हैं, फॉर एग्जांपल GCC वेबसाइट में खोलता हूं, ठीक है? लेट्स ओपन GCC वेबसाइट। अब GCC वेबसाइट में क्या है, देखो ये तुम्हें दिख रहा है, ये कुछ लोड हुआ पीछे, ये तुम्हें कुछ दिख रहा है पीछे, ये बटन दिख रहे हैं, ये इमेज दिख रही है यहाँ पे, ये सब कुछ दिख रहा है जो भी तुम देख पा रहे हो। Yes. अभी जो एनिमेशन दिख रहा है तुम्हें, इफेक्ट दिख रहा है कि पहले ये नहीं था, फिर ये फ्लाइन होके आ रहा है, ये देखो सब कुछ जो ये इफेक्ट दिख रहा है कि ट्रांजिशन हो रहा है, ये सब JS की वजह से हो रहा है, जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है। अगर इस बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने पे लेट्स सपोज डाउनलोड ब्रोशर, अगर ये यहाँ पर एक PDF फाइल खुल गई, ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ JS, बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर मान लो कि मैं ये नेविगेशन बार पे यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर होवर किया और यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ गए, क्यों ये हो रहा है? किस लैंग्वेज की वजह से हो रहा है? दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इज to perform functionalities in the website. सबसे सिंपल एग्जांपल गूगल। ये गूगल का जो पेज है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि बाय टी-शर्ट्स ऑनलाइन और यहाँ पर मैं एंटर मार देता हूं, तो ये जो अब चीजें आ रही हैं और मैंने जो किया, दैट इज बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट। कि भाई जावास्क्रिप्ट की वजह से मैं इसको एंटर कर पाया, एंटर जब मैंने हिट किया तो मेरे पास जो नेक्स्ट पेज है वो निकल गया है, ठीक है? तो देयर आर 3 टेक्नोलॉजीज। हर ब्राउजर, चाहे वो आपका सफारी हो, गूगल क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, वो इन तीनों लैंग्वेजेस को जानता है और इन तीनों लैंग्वेजेस का यूज करके ही आपको वेबसाइट दिखाता है। भाई जो सर्वर है उसने तो डेटा भेज दिया, उसने तो क्या बोला कि ये 10 इमेजेस हैं, ये 10 टेक्स्ट हैं और ये 10 PDF है, लो ले जाओ। अब ब्राउजर उसको कैसे दिखाएगा? तो ब्राउजर उसको कन्वर्ट करता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में कि भाई आपकी जो वेबसाइट का डेटा है वो किस तरह से अच्छा दिखेगा, और वो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि वो रन टाइम पे जनरेट करता है, आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि भाई मेरी वेबसाइट ऐसे दिखेगी। तो आपको दिखाने के लिए अगेन वो वापस जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया है उसको डिकोड करता है इन द फॉर्म ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अभी तक के इसमें कोई डाउट, कोई भी चीज जो अभी तक समझ में नहीं आई हो, इसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। ये चीज सबसे क्रूशियल है। एनीवन? 1990s के आसपास जो वेबसाइट्स बनती थी वहाँ तब CSS डेवलप नहीं हुई थी क्या? यस, उसमें क्या हुआ था, देखो विनय, उसमें ये हुआ था कि पहले HTML तो डेवलप हो गया था, लेकिन जब लोगों, तुमने जीमेल का बहुत पुराना वर्जन देखा है? मैं दिखाऊं एक बार जीमेल का बहुत पुराना वर्जन दिखाऊं एक बार, क्या होता है देखो। अगर कई बार तुम जीमेल खोलते हो ना, जीमेल लॉगिन, तो अगर तुम्हारा इंटरनेट स्लो है
देखो ध्यान से देखना इस चीज को, ये लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगर ये देखो, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। यस सर। ये जीमेल है, कैन यू बिलीव इट? दिस इज जीमेल, दिस इज जीमेल इंटरफेस। ये तब था जब सीएसएस नहीं आई थी या सीएसएस का इतना यूज नहीं होता था। अब बताओ ये अच्छा लग रहा है या फिर जो अभी आप खुद यूज करते हो वो अच्छा लगता है? आपको कौन सा अच्छा लगता है? सर अभी सर जो वाला। यूज कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये यूजलेस है। अगर मैं इस पे भी मेल देखना चाहूँ, पढ़ना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये देखो, जैसे मैं यहाँ क्लिक किया, ये मेल आ गया मेरे पास। आई कैन सी द रिप्लाई, आई कैन डू द रिप्लाई, आई कैन डू एवरीथिंग, बैक टू इनबॉक्स, सब कुछ कर सकता हूँ। बट ये अच्छा नहीं लग रहा है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्विच टू स्टैंडर्ड व्यू। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, आई विल सी द एक्चुअल व्यू ऑफ जीमेल। वाओ, Can you see the difference? Can you see the difference? For example, let's see, मैं आपको side by side दोनों का दिखाता हूँ। Right, this is the standard version. This is the standard. This is the HTML version, and this is the. Let me just split the screen, and आप खुद compare करो। See the comparison. Left hand side पे जो आप देख रहे हो, that is only HTML. Right hand side पे आप देख रहे हो, that is HTML plus CSS. JS लेफ्ट साइड में भी है, जावास्क्रिप्ट लेफ्ट साइड में भी है, बट जावास्क्रिप्ट ब्यूटीफाई नहीं करती, जावास्क्रिप्ट ग्लोरीफाई नहीं करती वेबसाइट को, बट CSS डज दैट। और तुम खुद देख सकते हो कि एज ए यूजर व्हाट यू विल लव, लेफ्ट वन और राइट वन? राइट वन। व्हाई? बिकॉज यू, ह्यूमन टेंडेंसी इज दैट यू नीड ब्यूटीफुल थिंग्स, यू नीड गुड लुकिंग थिंग्स, राइट? आपको अच्छा दिखने वाली चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है। So, but there can be possibility ना, because we have been just मतलब हम लोग तो सिर्फ इसी जो अभी नया वाला है वही हम लोगों ने देखा, तो we are liking it, and जो ये पुराना वाला है हम लोगों ने कभी देखा नहीं, so that's why we are not liking। ये भी तो possibility हो सकती है। पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। तो लेकिन आप चलो, मैंने आपको दोनों बता दिए। नाउ यू कैन सी द प्रीवियस वन एंड द करंट वन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार कौन सा पसंद आ रहा है? राइट वाला। राइट वाला क्यों पसंद आ रहा है? बिकॉज वो अच्छा लग रहा है, वो के बारे में भी देख। आई डोंट वांट टू मतलब मुझे ऐसे बुरा नहीं बोलना, पर जो लेफ्ट वाला वो थोड़ा क्लमजी लग रहा है, और जो राइट वाला बहुत नीट और ऐसे टाइडी सा लग रहा है। लग रहा है ना? मतलब आप अगर लेफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये कंपोज के बटन की बात करें, सिर्फ इस कंपोज के बटन की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैं माउस ले जा रहा हूँ, कितना मतलब ऐसा अपीलिंग लग रहा है कि हाँ यार कंपोज। और यहाँ देखो, गॉट योर पॉइंट। डिफरेंस ये है भाई। आपने बोला कि ठीक है सर, आपने प्रीवियस वर्जन कभी देखा ही नहीं, मैं कहा ओके, आई गॉट योर पॉइंट। बट अगर मैं आपको ऑप्शन दूं अभी भी कि भाई ये है और ये है, अब बताओ कौन सा लोगे? राइट, ऑफ कोर्स राइट वाला लोगे। तो यही फर्क है। अब आपको समझ में आया ये स्क्रीन दिखाने का क्या मतलब था? या एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट? ठीक है। HTML और विदाउट HTML में क्या, सॉरी CSS और विदाउट CSS में क्या फर्क होता है, और इतना ज्यादा फर्क हो जाता है। एंड प्लीज रिमेंबर, आज के जमाने में मेरे को शायद ही हार्डली मुझे याद है कि कोई गवर्नमेंट की कोई थर्ड क्लास वेबसाइट हो ना, उसके अलावा मैंने कोई ऐसी वेबसाइट देखी हो जो अच्छी नहीं दिखती हो। शायद मुझे हार्डली, मतलब मुझे शायद इतना रिकॉल करना पड़ेगा कि हाँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट एक बार के लिए बहुत घटिया हो सकती है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी वेबसाइट बोलो, चलो वेबसाइट में नहीं, अपन तो सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एस्टेट वेबसाइट्स, हम रियल एस्टेट की वेबसाइट देखते हैं, ठीक है? तो लेट्स सी रियल एस्टेट की वेबसाइट मकान.com। ओके, हमने इसको ओपन कर लिया और देखते हैं, और कोई लेस पॉपुलर वेबसाइट देखते हैं, ठीक है? लेस पॉपुलर वेबसाइट देखते हैं। लेट्स सी व्हाट यू से, ये कुछ है ट्रूलिया या ऐसा कुछ है, लेट्स सी, ठीक है? और देखते हैं अपन, देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स इन। सर लेकिन CSS हैवी भी तो कर देता है वेबसाइट को। कर देता है, बिल्कुल कर देता है। लेकिन आप ये बताओ, अगर मैं जैसे आपको बोलूं, दिस इज सेम एज कि आपको एक, तो मैं बोलूं कि यार मारुति की जो वो आती थी 800, मारुति सुजुकी 800, और एक तरफ मैंने आपको दिखा रखी है होंडा सिटी। क्या दोनों कार नहीं है? है दोनों के 4 व्हील नहीं है? सर लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे अभी टेक्नोलॉजी भरी है तो CSS आया है, तो CSS और फास्ट करना चाहिए था ना वेबसाइट को। लेकिन अगर CSS पर अच्छे से लगाएंगे, अच्छे क्वांटिटी में, तो हैवी कर देगा वेबसाइट को।
नहीं, तो उसके भी तरीके होते हैं ना, उसके भी तरीके होते हैं कि उसको कैसे अप्लाई किया जाए। यहाँ पर ही तो आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर ही आपको एक वेब डेवलपर और एक एक्सपर्ट वेब डेवलपर की जरूरत पड़ती है कि वो इस तरह से वेबसाइट को बनाए कि वो हैवी भी ना हो। See, each and every website you see nowadays will have CSS at least used in it. Any website you can easily see. हाँ, कोई 90s में बनी और आज तक चली आ रही है उसका नहीं पता, लेकिन अगर अभी के जमाने में कोई वेबसाइट बनी है, अब देखो जैसे ये है, तो इसका ये देखते हैं, होम पेज पे चलते हैं, इसका होम पेज देखो, इसका ये देखो, शानदार, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि BSNL की भी देखना, और सबसे बड़ी बात है कि BSNL आप की भी कलर्स का यूज कर सकते हैं। बीएसएनएल की खोल के देखें, चलो क्लास बीएसएनएल की खोल के देख लें, बीएसएनएल वेबसाइट, एंड ये बीएसएनएल पे आ गए। बीएसएनएल देखते हैं क्या इन्होंने कुछ रिवैम्प किया है अपनी वेबसाइट को। या बीएसएनएल इज आल्सो लुकिंग गुड, डिसेंट है, इट इज डिसेंट वेबसाइट, नो डाउट। ठीक है, समझ में आया अभी तक का लेक्चर? पिछले 3-4 महीने पहले, हाँ हाँ एक बार लेक्चर खत्म कर लेता है। तो व्हाट वाज द स्टेप 1? चलो अब मेरे साथ साथ वापस बोलो। सो व्हाट वाज द स्टेप 1? URL मतलब मीनिंग बताओ, मीनिंग। या आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट चली गई, ठीक है। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस DNS ट्रांसफर करता है डोमेन डोमेन टू आईपीएस। डोमेन आईपीएस फुल फॉर्म? domain name डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नेम सिस्टम, करेक्ट। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? व्हाट हैपेंस इन सेकंड स्टेप? रिक्वेस्ट सेंड करते हैं आईपी एड्रेस कहां पर? तो सर्वर पर। जिस और पेज को सर्वर अपन पर ओपन करने के कर रहे हैं। और सर्वर फिर क्या करता है? सर्वर थर्ड? वेबसाइट को ओपन करता है। हाँ, सर्वर वेबसाइट को ओपन करता है। सर नहीं। एचटी सर्वर क्या करता है? करेगा ना पहले। सर वो कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस को जो अपन सर्च करना चाहते हैं। हाँ, सर्वर आपको वो डेटा प्रोवाइड करता है जो आप एक्सेस करना चाहते हो। सर्वर वेबसाइट को नहीं दिखाता है, सर्वर सिर्फ डेटा भेजता है, सर्वर सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है। दिखाता कौन है आपको? ब्राउजर। सर्वर पर आप वेबसाइट नहीं देखते हो, ये ध्यान रख लेना। आज बोल दिया, आज के बाद मत बोलना, कसम खा लो। आज के बाद कभी ये नहीं बोलोगे कि सर्वर वेबसाइट को दिखाता है, नहीं, ब्राउजर दिखाता है। सर्वर सिर्फ उसका जो कंटेंट है, जो डेटा है, वो ब्राउजर तक भेजता है। समझ में आया? yes sir ठीक है। HTML, HTML, आपको इनके लिए CSS, भी एक JavaScript इमेजेस लेके आनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ऐसी इमेजेस कौन सी, ये वाली कि ये वाली? इन सब के लिए भी आपको इमेजेस का रेफरेंस देना चाहिए। सर इससे ज्यादा किससे समझेंगे हम? HTML और HTML प्लस CSS का दिया था ना। हाँ वही। अच्छा, हाँ ऐसी इमेजेस और Okay. लेके आनी चाहिए ताकि आप इमेजेस ज्यादा रिकॉल कर सकते हैं ना अपन। तो फिर एक काम करता हूँ, 2 बैच बना देता हूँ, एक बॉयज का, एक गर्ल्स का। ये क्यों? है ना? नहीं, इनको ये पसंद आ रही है ना। हाँ तो ठीक है, कभी ये बोल कभी रहे, ठीक है। नहीं नहीं, ये इनका मतलब है कि आप हमेशा ऐसी इमेज यूज करा करो हर लेक्चर में। हाँ हमारा सर interest हम बना कह रहे हैं कि सर आप इमेज के थ्रू हमारे को बताओ तो हमारे को अच्छे से नहीं समझ में आएगा। नहीं सर इमेजेस नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, I got मैं बस ऐसे बोल रहा था, कोई भी इमेजेस यूज करिए पर सर, इमेजेस I got ज्यादा it. रिकॉल कर रहती है ना इसलिए। अच्छा, तो फिर एक काम करें, तो फिर एक काम क्या करो, सर तुम्हारे पास हमारे गूगल बैच बाबा में तो कोई है है ही। भी नहीं खास। ये क्या बात हुई? ये क्या हाँ, बदतमीजी हाँ, थी? कौन था ये? कौन था ये? जतिन? यस सर। ये कौन था जिसने बोला अभी ये हमारे बैच में खास नहीं? कौन था ये? मैंने नहीं बोला सर। विनय। मैंने? सर मैंने ऐसे बोला था कि सर हमारे बैच में ज्यादा लड़कियां नहीं है। नहीं, what was the statement did you use? लड़कियों की What was the लड़कियों की statement खास did you use? पॉपुलेशन नहीं है हमारे बैच में। What was the exact statement मेरा did you statement- use? हाँ यही था कि हमारे बैच में ज्यादा लड़कियों की खास पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन बोलने वाला था तब आपने कोई इंटरप्रेट कर दिया बीच में, तो वो पूरा मैंने एक बात स्टेटमेंट बताऊं, कंप्लीट नहीं हो पाया। एक बात बताऊं, ऑन सीरियस नोट बता रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सबसे ज्यादा फ्रेंडली हूँ। देखो ये सब लोग सुन लो,
मैं आप लोगों के साथ फ्रेंडली हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप में कितना, मैं खुद ही आपको बल्कि एंटरटेन करने के लिए ऐसे थोड़ा उसमें डाल रहा हूँ कि मैं खुद ही जानबूझ के ऐसी इमेज कि हाँ मुझे पता है आपका टेस्ट, मैं आपसे ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, ठीक है ना। इफ योर एज इज अराउंड 18-19 तो मैं भी 23 का ही हूँ, तो अभी जहां से आप निकले सर हो, मैंने ऐसे विनय लिसन टू मी, विनय लिसन सर टू मी, मैंने पहले मेरी बात सुन लो उसके बाद बोलना, ठीक है। और मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ सबको कि आपने बोला है, लेकिन मैं सबको बोल रहा हूँ कि एक चीज मेरे सामने हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी मजाक करो, गर्ल्स के लिए, किसी भी विमेन के लिए मैं कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड किसी भी सेंस में नहीं सुनूंगा, चाहे वो मजाक में हो, कमेंट में हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, कुछ भी नहीं, मैं किसी के बारे में कोई नहीं सुनूंगा, और सर खासकर जब वो है क्लास में सर तब तो बिल्कुल मैंने नहीं सुनूंगा। मुझे पता मैंने है ऐसे तुम्हारा बोला था इंटेंशन कि वो नहीं सर था। इमेजेस से ज्यादा रिकॉल रहता है, और कोई भी इमेजेस यूज करिए, मैंने ऐसे नहीं बोला था कि आपको लड़कियों की यूज करनी है, आप कोई सी भी, मतलब जैसे आप मैंने इमेजेस यूज मैंने करते हैं तो उससे मैंने ज्यादा तुम्हें रिकॉल, जैसे इमेजेस मीम्स होते हैं उनमें। इमेजेस वाले पे नहीं बोला है मैंने तुम्हें, मैंने तुम्हें तुम्हारे उस और सर स्टेटमेंट पे मैंने बोला है कि सर लड़कियों के हमारे लिए भी बैच में कोई खास नहीं है, खास, ठीक है ना। हाँ तो वही तो सर, खास के बाद मैंने आपने ही नहीं सुना, क्योंकि मैं पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा था कि हमारे यहाँ पे 3 या 4 लड़कियां ही हैं, तो वो भी उनके ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो ऐसे उसको करेंगे बोलने तो। का विनय और मैं तरीका होता है, इमेजेस के लिए बोल रहा था। उसको बोलने का विनय तरीका होता है, एक सलीका होता है। अगर आपको ये बोलना भी है ना तो सर वो आप नॉइस हमेशा, आ रहा था तो मेरी आवाज कुछ अलग तरीके से, ठीक है, इस बार के सर लिए मैं तुम्हारी नॉइस आ बात रहा मान था तो लेता मेरी हूँ, आवाज अलग तरीके से। इस बार के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन स्टिल जो मैंने बोला वो सबके लिए एप्लीकेबल है, कि कोई भी इस चीज का ध्यान रखना, आप कितना भी मजाक करो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन इस चीज पे प्लीज माइंड योर वर्ड्स कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मजाक करो मुझे सर कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब वो मैं तो बिना बात के ही फंस गया ना यहाँ पे, मैंने तो ऐसा तुम फंसे इंटेंशन नहीं था हो, भी नहीं, और मैंने ऐसा बोला फंसे भी नहीं नहीं था हो, फिर मैंने भी। सिर्फ, देखो फंसे नहीं हो, मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें सिंगल पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बोला, लेकिन मुझे याद आ गया उसी टाइम, तो मैंने अभी सबको ही बोला है। क्या मैंने सिर्फ ये बोला कि विनय तुमने बोला, विनय तुम, मैंने बोला सबके लिए बोला मैंने, कि कोई भी अगर कुछ भी करता है करो, सारे मजाक करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें अगर कोई जोक याद आता है तो आई विल पार्टिसिपेट इन दैट, तुम मुझे बताओ कि सर एक जोक याद आया, आई लिसन टू दैट, बट जब भी वर्ड्स यूज करो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सोच समझ के करना, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि ये मैं, चाहे मुझे आप इनहेरिट कर, मेरी ये बहुत गंदी आदत है कि मैं इस चीज पे बिल्कुल नहीं सुन सकता। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ठीक है, ऑफलाइन में भी मैं ये बर्दाश्त नहीं करता था, ठीक है ना। कुछ भी करना है करो, मस्ती करो, मजाक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं खुद तुम्हें इस तरह की इमेजेस दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, फिर प्रॉब्लम कहाँ है, क्लियर है। तो विनय, मैं तुम्हें वही तो स्पेसिफिकली मैं नहीं बोल सर रहा वो हूँ, पॉइंट सबको कर रहा जनरल था बोल रहा कि हूँ, सबको जनरल बोल इमेजेस रहा की हूँ, वजह चलो से ज्यादा याद रहता है। लेट्स एंड दिस टॉपिक, कोई इश्यू नहीं है, यार, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना, बट सब ये ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 समझ में आ गया सबको, एनी प्रॉब्लम इन दैट। सर अमन ने एक चीज पूछी थी, मेरे को भी डाउट है हाँ, कि सीएसएस ब्राउजर को इफेक्ट करता है क्या? देखो सीएसएस क्या होता है, ब्राउजर को इफेक्ट नहीं करता है, सीएसएस जेएसएस ये ब्राउजर को इफेक्ट नहीं करते हैं, ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को इफेक्ट करते हैं। स्पीड मतलब कि कितनी देर, कई बार आपको लगता नहीं यार ये वेबसाइट बहुत स्लो है, यार खुली नहीं रही है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अगर उस वेबसाइट में लेट्स सपोज सीएसएस या कुछ भी यूज किया है, देखो हर चीज को यूज करने का एक तरीका होता है ऑनलाइन, ठीक है। अगर आपने बहुत सारी हैवी फाइल्स अपलोड कर दी तो वेबसाइट वैसे भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो मे बी इन केबीज आती है या मे बी इन एमबीज आती है, जीबी में तो नहीं आती होगी किसी के, हाँ नासा में आती होगी या किसी ने एक्स्ट्रा प्लान लगवा रखा होगा तो अच्छा वाला, तो उसके आती होगी, वरना मोस्टली जो 4G की स्पीड है इंडिया में वो 2.3 एमबीपीएस के आसपास है एवरेज स्पीड, ठीक है। अब लेट सपोज अगर मान लो एक वेब पेज का जिसको तुम खोलना चाह रहे हो उसकी टोटल साइज ही 10 MB है, कितनी है टोटल साइज 10 MB है ड्यू टू एनी रीजन, और आपकी जो नेट की स्पीड है वो 100 kbp पर सेकंड है, तो अब तुम इमेजिन कर लो कि कितनी देर में वो वेबसाइट खुलेगी, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा इसको ये देखो, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोवेशन वेबसाइट है, ठीक है, क्या तुम्हें देख के लग रहा है कहीं भी कोई भी भारी एलिमेंट यूज किया हुआ है, किसी को लग रहा है देख के कोई भारी एलिमेंट यूज किया हुआ है? नो सर। नहीं किया हुआ है ना, बहुत सिंपल सा। अच्छा इसको इसको निकालने का एक तरीका है,
अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हो ना, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस कर सकते हो लैपटॉप पे। ये देखो, कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपको एक साइड में एक विंडो खुल के आएगी। अब ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है। यहाँ पर एक साइड में एक विंडो खुल के आएगी आपके पास, ठीक है। और अब आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट का मोबाइल व्यू है उसको आप देख सकते हो। आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप में ही जो भी वेबसाइट का मोबाइल व्यू है वो देख सकते हो। एंड यू कैन यूज डिफरेंट डिवाइसेस। गैलेक्सी S5 में देखना है, पिक्सल 2 में देखना है, आईफोन 6 में देखना है, आईफोन 8 में देखना है, आईपैड में देखना है, यू कैन डू दैट। और अगर सिंपली वेब वर्जन देखना है तो आप इसको सिंपली ऐसे ही रहने दो। समझ में आ रही जी? अब इसमें ये देखो कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। नाउ फॉर एग्जांपल, अब मुझे देखना है कि टेक्नोवेशन की जो वेबसाइट है वो कितनी देर में लोड हो जाती है, यानी व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द लोडिंग टाइम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक नेटवर्क का टैब दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहा है। यस सर। यस सर, यस सर। यस। अब नेटवर्क वाले टैब में मैं जब हूं तो देखो यहाँ पर आपको कुछ लाइन दिख रही होंगी, एक ग्राफ दिख रहे होंगे, लाइन दिख रही होंगी, ये देखो यस लेफ्ट टू सर। राइट जाती हुई। यस और यस इनके सर। इनके ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, 11,000 मिली सेकेंड, 12,000 मिली सेकेंड, 13,000 मिली सेकेंड, दिख रहे हैं नंबर्स। यस सर। यस यस तो सर। बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जहां तक ग्राफ जाएगा ना, ये टोटल जितना ग्राफ जाएगा वहां तक आपकी वेबसाइट पूरी लोड हो गई। ये देखो, ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर आकर आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी लोड होगी। यानी जितना टाइम, अच्छा मिली सेकेंड का मतलब है 1000 मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड, 2000 मिली सेकेंड का मतलब है 2 सेकेंड, एंड फर्दर ऑन। अब मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूं एंड सी की कितनी स्पीड है। नीचे देखना, देखो नीचे अब ये जो लाइन है कहां जाके रुकी, यहां पे जाके रुक गई। यस और नो? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर एक क्या और बात नंबर लिखा बताऊं, हुआ है? मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं इस वेबसाइट को। रिफ्रेश करने पर अब आप देखो, ये वाला जो मैं अपना पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जहां पे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूं, ठीक है, ये जो पैच है ये दिखाता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है, व्हाट इज योर वेबसाइट स्पीड, ठीक है। या फिर अगर ये भी नहीं देखना ना, तो देखो नीचे एक चीज दिख रही है, ये दिख रहा है, हाँ सर। लोड। लोड 7 पॉइंट, हाँ लोड 2.73 सेकेंड। मतलब इस वेबसाइट को लोड होने में 2.73 सेकेंड्स, 2 सेकेंड लगते हैं ऑलमोस्ट, मान लो 3 सेकेंड लगते हैं। यानी इस वेबसाइट की जो स्पीड है वो 3 सेकेंड है, कि 3 सेकेंड में ये वेबसाइट खुल जाएगी। सर लेकिन वो CSS स्पीड भी तो तो अच्छे आपके यूज कर रखे हैं, स्टिल योर मतलब साइट इज नॉट टेकिंग सो मच ऑफ लॉन्ग टाइम। हाँ अभी CSS तो वही तो हाँ ऑप्टिमाइजेशन का काम है, वही तो अब देखो, ये सिर्फ जरूरी नहीं कि टेक्नोवेशन के लिए कर सकते हो, यू कैन डू इट फॉर एनी वेबसाइट। लेट्स सपोज आई गो टू गूगल, ठीक है, गूगल में कोई वेबसाइट मैंने सर्च की, फॉर एग्जांपल BSNL वेबसाइट को ही कर लेते हैं। अब जब मैं BSNL वेबसाइट को खोलूंगा तो ध्यान से देखना नीचे कितना लोड टाइम आएगा। ओके ये मैंने BSNL वेबसाइट पे क्लिक किया, अब BSNL की वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है, कितना आया नीचे? 4.50 सेकंड। 5 मिनट। 5 हाँ? सेकंड। 5 सेकंड 5 सेकंड सेकंड, मिनट साढ़े नहीं चार सेकंड, 4.5 सेकंड, ऑलमोस्ट 5 सेकंड मान लेते हैं, यानी हाँ 5 सेकंड लगे इस वेबसाइट को लोड होने में। समझ रहे हो? अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वी गो टू मेक माई ट्रिप, इतनी बड़ी वेबसाइट है, लेट्स सी कि कितना बड़ा उसका लोड है। नहीं ये कुछ भूल गया, रुको एक सेकंड, मेक माई ट्रिप, हाँ, तो आई हैव ओपन्ड मेकमाईट्रिप.com, इतनी बड़ी वेबसाइट है, मिलियंस का ट्रैफिक है, लेट्स सी कितनी देर में खुलती है, 8 कितना टाइम? सेकंड। 8 सेकंड सर। 8 सेकंड। 8 सेकंड क्यों दिखाया 8 सेकंड? सर लोड तो में ज्यादा प्रॉपर्टी टाइम लोड ही नहीं हुई। लोड नहीं हुई ना, एक बार वापस लोड कर 8 ले। सेकंड ये प्रॉपर है, लगेगा। ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल शिफ्ट और आई, उसको अगर नहीं हाँ करना चाहो तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दिया अब आपने। अब वापस लोड करते हैं और नेटवर्क वाले टैब में चलते हैं।
कितने सेकंड लगा? 3.41 3.41 क्यों अब टाइम तो कम क्यों लगा? 3.41 नहीं 3.4 जो भी पहले तो 8 सेकंड लगे थे ना, अब 3.41 सेकंड क्यों लगा? अब कितना टाइम लगा? 7.52 सर ट्रैफिक की वजह ये से वेरी क्यों कर रहा है टाइम, वेरी क्यों कर रहा ट्रैफिक है की वजह टाइम? से कि उस टाइम पे कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट को। देखो, जो लोडिंग टाइम है दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग, व्हाट इज योर इंटरनेट स्पीड, फर्स्ट थिंग। अब मेरा यहाँ पर वीडियो कॉल भी चालू है और मैं इंटरनेट भी एक्सेस कर रहा हूँ, तो मेरा नेट थोड़ा सा स्लो हो गया शायद, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग, वो वेबसाइट कितनी हैवी है। हैवी का मतलब देखो, इसमें इस कितने वेबसाइट, spaces हैं? यस, इस वेबसाइट का साइज क्या है, इस पर्टिकुलर वेब पेज का साइज क्या है? ये देखो यहाँ पर पॉइंट है 2.5 या नहीं है समझ नहीं आ रहा। सर वो पॉइंट है 25 2.5 MB, ओके Yes, sir. 2.5 MB राइट। तो मतलब इस पेज का जो साइज है वो 2.5 MB है। या ये जो ज्यादा होगा ना, उतनी वेबसाइट स्लो खुलेगी। उसमें Getting the सीएसएस point? इतने छोटी एमबीज के होते हैं क्या कि सिर्फ इतने सारे सीएसएस के बाद भी? बहुत बहुत छोटे में होते हैं, केबीज में होते हैं, केबीज में 1 KB 2 KB एक बार 3 KB। आपकी उसकी दिखा दो। मेरी उसके दिखा दूं, technovation.in। 2.1 MB 2.1 MB। या The तो loading ऑल time is राउंड 2.79। मतलब इतनी होती है सारी वेबसाइट ऑलमोस्ट 2 MB 3 ये MB। डिपेंड करता है किसने कैसे यूज किया, डिपेंड करता है। सबकी हो ऐसी जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है वेबसाइट को डेवलप करने में, कितनी अच्छी तरह से आपने उसको ऑप्टिमाइज कर रखा है। अपन बात करेंगे, टेंशन मत लो, अपन सब डिटेल में बात करेंगे जब खुद की वेबसाइट बनाएंगे ना। अभी देखो, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये क्या मैजिक है, ऐसे कैसे होता है, मतलब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, बट ये सारे क्वेश्चंस हम इस पूरे सेमेस्टर में आंसर करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर यू विल लाइक अ प्रो। अरे सर वेबसाइट तो मैं बना देता हूँ सर, आओगे मैं बनाऊंगा, ऐसे जाओगे तो, ठीक है सर ना। एक चीज बट पूछनी थी मेरे को कि जैसे जो इंडियन रेलवे वाली वेबसाइट है सर, उसमें नेट कितना भी अच्छा हो उसको टाइम ही लगता है लोड होने में। यार वो डिपेंड कर, वो इसलिए लगता है क्योंकि वो रन टाइम ट्रैफिक पे की क्या वजह है, से। टिकट रन टाइम पे टिकट्स एलोकेट करती है, ओके। ठीक है ना भाई। जैसे मान लो कि 100 लोग आए, 100 लोग एक साथ टिकट बुक कर रहे हैं, अब 99 सीट्स फिल आउट हो गई, तो बैकएंड में वो प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है उसको कि कितनी सीट्स फिल हो गई, कितनी सीट्स बाकी हैं, कहाँ एलोकेट हो गई, कौन से डिब्बे में। तो जो डेटा है वो इतना ज्यादा बैकएंड पे उसका चलता है ना कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। सबसे हेवीएस्ट साइट इंडिया की कोई है ना, वो IRCTC की वेबसाइट। सर हाँ सिद्धांत। सर मैं पूछ रहा था कि जब हम कोडिंग करते हैं तो इतना छोटा सा इमेज लेंगे तो ब्लर होने का कोई टेंशन नहीं रहता है? नहीं 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 नहीं, इमेज ब्लर होने का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि उसकी भी एक टेक्निक होती है कि हम ऐसे ही इमेज को मतलब छोटा नहीं कर देते हैं। उसके प्रॉपर टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम उसको छोटा करते हैं, और प्रॉपर साइज में कि भाई हाइट इतनी होनी चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको एलोकेट करते एंड सर बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कहती हैं कि आप अपना मोबाइल पहले एनक्रिप्ट करें, तो वो कैसे? हैं। इनक्रिप्ट करें इन द सेंस, मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। मतलब कहती हैं कि आइदर जो फोन, मतलब अगर कोई आप गवर्नमेंट साइट जैसे कोई आर्मी की वेबसाइट आप अगर एक्सेस कर रहे हैं, तो वो हम्म कहते हैं कि आपका सेल फोन पे है तो खुलती नहीं है पहली बात, या फिर खुलती भी हम्म। है तो कहते हैं कि आपको अपना मोबाइल पहले एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, पहले सिक्योर करना पड़ेगा। देखो, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती है ना, जो इवन जो जैसे डिफेंस सिस्टम हो गया या CBI की वेबसाइट हो गई, इस तरह की जो वेबसाइट्स होती है इनकी सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि ये बेसिकली जो कंट्री का डिफेंस सिस्टम है उसको हैंडल करती है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस को हैंडल करती है। तो इनके हैक होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो इसलिए हर कोई इसकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, यूजर के लिए ये अलग से वेबसाइट बनाते हैं, मतलब एक तो इनकी जो एक्चुअल इंटरनल वेबसाइट होती है, और एक जो यूजर देख सकता है कि हाँ भाई CBI की क्या वेबसाइट है, देखना चाहो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज हम CBI की वेबसाइट खोलना चाहे, मैं गूगल करूं कि CBI वेबसाइट, तो क्या मैं कर पाऊंगा? लेट्स सी, CBI वेबसाइट, cbi.gov.in, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये वेबसाइट है। तो मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो ये, बस ये इतना ही
भी नहीं है। कैन यू सी कि इसमें CSS नहीं है? ये बहुत कम है। सर अभी वाइट स्क्रीन ही आ रही है। सब कुछ पूरा वाइट स्क्रीन ही आ रही है। आप दिख रहा है? हाँ सर अब देखो। यस सर। सेंटर। हाँ खुल गया। यस सर। सर इसमें तो HTML अब यूज तुम कर रखा है सोचोगे काफी। अब तुम सोचोगे कि सर सीबीआई तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास पैसे की क्या कमी है, फिर ऐसी क्यों वेबसाइट बनाते हैं? क्योंकि ये बेसिकली उनकी थोड़ा एक्चुअल सीएसएस वेबसाइट कर नहीं लेते है। सर, वो लगा। ये उनकी वेबसाइट है ही नहीं एक्चुअली। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। क्यों मतलब? अगेन सीबीआई इज अ सिक्योरिटी रिलेटेड और डिफेंस रिलेटेड ओ, इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट। वो आपको ऐसा, यार एक बात बताओ, आज मान लो सुशांत सिंह का केस चल रहा है, तो क्या सारी डिटेल वो अपनी वेबसाइट पर डाल दें? नहीं नो। डालेंगे ना फॉर श्योर, कि भाई वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये सिर्फ देखो, अभी इन्होंने देखो बता भी क्या रखा है कि अभी करंट सीबीआई के डायरेक्टर कौन है। श्री ऋषि कुमार शुक्ला, ये करंट डायरेक्टर है। ठीक है, ये बता रखा है। ठीक है, एक नरेंद्र मोदी का ट्वीट डाल रखा है, जॉब अगर अपॉर्चुनिटीज के नॉर्मल बारे में गूगल डाल पे रखा जो है, इन्फॉर्मेशन इंटर्नशिप। मिल जाती है वो डाल रखी है बस। बस हाँ, जो पब्लिकली अवेलेबल करवा सकते हैं ना, ये सिर्फ उतना ही डाल रखा है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो वेबसाइट होती है, वो कई बार तुम्हें ऐसा दिखेगा सर ये तो CSS ही नहीं है या कुछ भी नहीं है, बट उनका पर्पस अलग होता है। उनका पर्पस ट्रैफिक नहीं है। सीबीआई की वेबसाइट पर ट्रैफिक लगे क्या कर लेंगे वो लोग? उनका कोई यूज थोड़ी, सीबीआई की वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आ जाएगा तो बहुत सारे यूजर आ जाएंगे, अगर नहीं। उनको सिर्फ ये है कि हाँ ऑनलाइन कोई सर्च करे तो उन्हें मिल जाए, कोई अपनी कुछ डालना चाहे। ये देखो, व्यू FIR, कुछ FIR से रिलेटेड है। देखो, केसेस रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2020, ऑल इंडिया में कितने केस रजिस्टर्ड हुए, ये देखो। ये देखो, इस तरह की जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, सिर्फ वही दिखेगी यहाँ पर। समझ में आया? सर जैसे CBSE वाली वेबसाइट है हमारी ओ जो यस जिसपे सर। रिजल्ट आता है वो तो हर बार क्रैश हो जाती है, जबकि उनको तो अच्छे बनानी चाहिए ना। यार वो देखो, इसमें क्या होता है, मैंने जैसे कल बताया था कि सर्वर का प्रॉब्लम होता है कि अगर सर्वर की कैपेसिटी खत्म हो गई और उन्होंने उस ऐसा सर्वर नहीं ले रखा जो रन टाइम पे अपने आप को स्केल कर सके, तो प्रॉब्लम होगी। वो आपके सबके साथ होती है। पर उसमें बट भी उनको तो ऑब्वियसली बात पता है ना कि है अगर ना। आप, और उन लोगों को पता या तो होता ही है कि कितने कितने बच्चे खोलेंगे एक साथ, यूजर है और तो उनको कितने हाँ ऑप्टिमाइज खोलेंगे एक करनी साथ। चाहिए पहले से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे एक वेबसाइट तो हो गई जो ऑफिशियल उस बोर्ड की है, जैसे CBSE बोर्ड हो गई, RBSE बोर्ड हो गई, UPSC जो भी बोर्ड रखा वेबसाइट हो गया, एक तो ऑफिशियल वो है। ठीक है, एक दूसरी वेबसाइट है इंडिया रिजल्ट्स करके, नाम सुना है? हाँ यस सर। इंडिया रिजल्ट कभी डाउन नहीं होगी तुम्हारी। कौन सी? इंडिया नहीं सर, रिजल्ट्स। लेकिन जब तक CBSE वालों का रिजल्ट बाहर नहीं आया था तो उस दिन उस पे भी नहीं आया था रिजल्ट, इंडिया रिजल्ट पे भी। फर्क समझो, CBSE वाला इज अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी। गवर्नमेंट के पास हर चीज के लिए एक फंड होता है, उससे ज्यादा वो एलोकेट नहीं करते। और आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट करप्शन, ठीक है? तो जो भी वो फंड है, अब उससे ज्यादा जेब से तो कोई लगाएगा नहीं। जो गवर्नमेंट ऑफिसर बैठा है, उनके क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, क्रैश हो गई तो क्रैश हो गई, जब आप चले जाएंगे तुम देख, तुम्हारे आज नहीं तो 3 दिन बाद देख लोगे, नहीं क्या फर्क पड़ रहा है? उनका क्या लॉस है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनका क्या लॉस? कोई नहीं। रिजल्ट तुम्हें देखना है, उनको तो नहीं है। उन्होंने डाल दिया, जब तुम वेबसाइट खोले देख लो। इंडिया रिजल्ट इज अ प्राइवेट वेबसाइट, इज अ प्राइवेट कंपनी। उनको उससे कमाना है। वहां पर एडवर्टीजमेंट देते हैं वो लोग, वहां पर बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो जो वेबसाइट है वो कभी क्रैश नहीं या वो कभी डाउन नहीं, क्योंकि उन्हें उससे कमाना है। बट CBSE वालों को अपनी वेबसाइट से नहीं कमाना है, तो वो पैसा भी खर्च नहीं करते। जितना फंड है उतने ही फंड में काम चला दो। तो ये हर बार होगा, हर बार रिजल्ट की वेबसाइट आपकी, चाहे वो CBSE हो, UPSC हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, सबकी क्रैश होगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, टाइम हो गया वैसे अपना। जिनको अगर कोई डाउट नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है कि सर अब हम जाना चाहते हैं, दे कैन लीव। जिनको अभी भी कुछ पूछना है, 1 to 1 बात करनी है, दे कैन स्टे। आई एम अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स आल्सो, ठीक है ना? तो क्लास अपनी आज खत्म हो चुकी है। मंडे को आपका टेस्ट है, प्लीज रिमेंबर, मंडे को आपका टेस्ट है। आज का जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है वो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा बाय इवनिंग। बाकी 3 जो लेक्चर ऑलरेडी हुए हैं उनका लिंक मैंने आपको दे दिया है। आई विल ऑल्सो शेयर ऑन गूगल क्लासरूम, ठीक है? तो अगर किसी को कोई डाउट है, किसी का मिस हो गया है, तो रिवाइज कर लेना उसमें से। एंड मंडे यू विल बी हैविंग योर टेस्ट।
जिसमें एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके ठीक है, तो those who want to leave they can leave and those who want to ask something please ask. तो कितने टाइम का टेस्ट होगा? टेस्ट तुम्हारा हाफ एन आवर का। ओके 9:30 to 10. यस मोस्ट प्रोबेबली, इसलिए लेट मत होना मंडे को, nobody will be allowed after 9:30. एनी क्वेश्चन है निधि? सिद्धि तो पता नहीं सर। कहाँ चली गई। सर तो सिद्धि क्या तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा क्या? अच्छा ओके यार, ये ऑनलाइन का सही है, तो मैं ना म्यूट करके चले जाऊँ, किसी को पता ही नहीं है। चलो ठीक है। हाँ उत्कर्ष, तुम कुछ बोल रहे थे? उत्कर्ष बोलो। उत्कर्ष कैन यू हियर मी? हेलो सर। ये हाँ तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो। वो लेने चले गए अंदर तो सर ये पूछ रहे थे हम कि हमारे पास यदि हमारे डोमेन नेम हम नहीं दें, है ना, सिर्फ हमारा आईपी एड्रेस जो है हमारा वो किसी को दे दें जैसे, तो क्या हम